Okay. In the previous session, we have completed. Uh, we have in the previous session we had not completed our financial model. There were few items which were left, and those items we are going to project in this class. So, from income statement, we have to forecast shares so that we can calculate basic and diluted EPS. From the balance sheet, what we are going to do, we are going to forecast remaining items like cash and market security, but these items will come from cash flow statement. Other current assets will remain equal to the previous one because we don't forecast this kind of items, because there are many items from different categories. Basically, they are all current items, but they cannot be projected based on a single projection criteria. As I told you even in the previous session, that if there is something in current assets which you want to project, then take that item out of current asset category and put it on the face of the balance sheet. Project that particular item which you have taken out from other current assets and keep the remaining items constant. Or clear or not? Okay. Then loans and current portion of long-term debt we will forecast later. These two items will remain constant, so equal to, click on this, enter. We are keeping them constant. From every balance sheet, 40 to 50% items will be constant. Then we have deferred tax and other liabilities, keep them constant. Equity items, all items will be projected. Okay. Now we have added a sheet called equity sheet. We are going to project shares on equity sheet. But first of all, copy this particular format. We are copying it from B3, paste it in B3 only. Let me resize the column, and this will be equity schedule. After this, basic shares, ओपनिंग शेयर्स ले लो खाली। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, ऑप्शन कन्वर्ट्स, देन शेयर्स बायबैक, क्लोजिंग शेयर्स आउटस्टैंडिंग, then basic weighted average shares outstanding. We will add dilutions to it. We will get diluted shares outstanding. ये closing shares, basic shares और diluted shares, you have all these items in the income statement. I think we don't have closing shares. We have only basic shares. Let me check. Right, we have only basic and diluted weighted average shares. We don't have closing shares. We will work on that. So, equal to data income statement से जब वहाँ पे जाएगा, it will be linked. हम इसे कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हम इसे लिंक करेंगे. और ये आपके डायलूटेड शेयर्स हैं. यहाँ तक करिए, फिर बात करते हैं क्या करना है. नहीं, सिंगल सेल पे क्लिक करके. एक्सेल में तो थोड़ा हाथ क्लियर हुआ होगा आपका, हुआ है ना? हाँ, देखा मैंने. सर एक फोटो मार दी मैंने ना, एक एक्सेल बनाई थी, जैसे हम उसको लॉक करते थे पिक्चर से, मतलब पिक्चर बना के उसको हम मेल में फॉरवर्ड करते थे, लॉक हो जाती थी. वो नहीं बना वैसे, मैंने उसमें ट्राई किया. हो जाएगा. आप बेसिकली चाहते हो कि डेटा पर्टिकुलर उसको पिक्चर के तरीके से कर लिया जाए. मैंने ऐसे टेबल बना ली और वो पिक्चर की तरफ में मेल में हो जाना चाहिए मेरे ख्याल. मेल मेरे से नहीं हुआ, वैसे आपने बताया था. अच्छा, बताया था ना, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा. कई बहुत तरीके हैं इस चीज़ को करने के. वैसे एक काम करो, पहले देखा जैसे ये ले लिया ना, इसे कॉपी कर लो और यहाँ पे क्लिक करो, वहाँ दिख जाएगा आपको. राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, इसके बाद यहाँ पर देखोगे ना तो ये कई चीज़ें ऑप्शन हैं. एक तो पेस्ट एज लिंक, एक पेस्ट एज पिक्चर.
और एक ये वाला ऑप्शन है लिंक्ड पिक्चर। इससे में तो क्या होगा कि ऊपर डाटा अगर चेंज करोगे तो पिक्चर में भी चेंजेस आएंगे, और ये करोगे तो सिर्फ और सिर्फ पिक्चर बनेगी। तो जैसे इस पर क्लिक कर दिया तो ये पिक्चर आपके पास नीचे, दिस इज ए पिक्चर। कहाँ पे? इधर इसमें होम पे होता है वो। ये देखो इसकी बात कर रहे होगे, यहाँ पर भी ये देखो ये फॉर्मेटिंग हो गया तो खाली ये पेस्ट लिंक हो गया, ये पिक्चर हो गया। यू कैन टेक दिस। वो तो एक होता है कैमरा उठाओ और उससे पिक्चर खींच लो, एक वो भी तरीका है। वो तो फिर यहाँ से ना एक वो टूल है जो आपको यहाँ पे सामने दिखता नहीं है, उसके लिए फिर आपको यहाँ पे राइट क्लिक करो, कस्टमाइज रिबन, ऑल कमांड्स, यहाँ पे क्लिक करके अब कैमरा ढूंढो, ये रहा कैमरा। इस कैमरे को कहाँ पे ऐड करोगे, देखता हूँ रुको जरा। जैसे यहाँ पे क्लिक करके ये मैंने आपको बताया ही नहीं है, ये नहीं बताया होगा मैंने आपको। हाँ बता तो दिया होगा मैंने, लेकिन ऐसे नहीं बताया होगा आपको। अब ये कहाँ पे क्या होगा, कहाँ क्लिक किया था, कोई दोबारा कर लेते हैं। राइट क्लिक, कस्टमाइज रिबन, मैं क्विक एक्सेस में डाल देता हूँ। वैसे मैंने फिलहाल शायद ये रिमूवल बैकग्राउंड कहीं पे डाला, ये डाला है ना यहाँ पे बैकग्राउंड, छोड़ो इसको हटाओ। हाँ टैब ऐड करे करूँगा ना, वो दिख नहीं रहा ना कहाँ पे। चलो कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ, इसमें डाल लेता हूँ मैं ऑल कमांड्स। ये देखो ये कैमरा आ गया ना, इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो ये कैमरा क्विक एक्सेस में आ गया। ये तो मैंने बताया होगा 100%। और जैसे इसको सेलेक्ट किया, अब इस पर क्लिक करके इसकी फ़ोटो खींच लो, फ़ोटो खींच गई, यहाँ पर उठा के पेस्ट कर दो, फोटो पेस्ट हो गया। दिस इज ए पिक्चर। ये वही है जो पेज स्पेशल में किया ना आपने, सेम वही चीज़ है। इसको आप जो करना चाहो, कुछ डेटा कुछ भी जो मर्जी, बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, बाकी कैमरे की जाने की जरूरत नहीं है, उठाए कॉपी पेस्ट ही कर लो, वही काफ़ी है। नहीं ये फोटो ही तो खींची है इसने, वो भी फोटो ही पेस्ट करी हमने, इसने फोटो ही खींच के फोटो पेस्ट करी है। हाँ दोनों से हो जाएगा। किस पर्पज़ के लिए चाहिए थी आपको डाटा पिक्चर बना करके? डाटा फॉरवर्ड करना था, कोई चेंजेस ना कर पाए। शीट लॉक कर ली थी तो शीट लॉक कर लो। नहीं मेल में भेज रहा था, मतलब मेल में हमें ऐड करके भेजा था, एक्सेल में नहीं भेजा था। चलो ठीक है, चलिए कोई नहीं। अब देखो हमें आउटस्टैंडिंग शेयर्स भी चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार एनुअल रिपोर्ट में। यहाँ पे देखो मैंने ये वाला दिखाया होगा आपको कि डिटेल मैंने शेयर्स की कहाँ से उठाई, डायलूशन की। तो ये आपके नेट इनकम है बेसिक ईपीएस के लिए, और ये आपके बेसिक वेटेड एवरेज शेयर्स हैं, तो उसके बेस पर बेसिक ईपीएस आती है। तो मैंने आपको ये तो कॉपी कर लिया 9.902 99909 भी कॉपी कर लिया, लेकिन ये नहीं किया था। जनरली हम क्या करते हैं, दिस प्लस दिस करके ये निकालते हैं। अब मैंने क्या करना पड़ेगा, दिस माइनस दिस करके मैं ये निकाल लूँगा। डायलूशन भी तो चाहिए ना हमारे को। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आउटस्टैंडिंग शेयर्स नहीं है, ये सारे वेटेड एवरेज वाले हैं, बेसिक या डायलूटेड। उसके लिए हमें एक बार शेयर्स ढूंढने पड़ेंगे। एक इस कीवर्ड से शायद मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। वैसे आप जब सर्च करोगे ना तो आउटस्टैंडिंग करके सर्च करना, कोई फायदा होगा नहीं वैसे इससे भी। ये रहा, ये देखिए ये वो पर्टिकुलर टेबल है जिसमें आपको डिटेल मिलेगी। आप ध्यान से देखना इसमें क्या लिखा हुआ है। A summary of common stock and treasury stock activity for last 3 years। कॉमन स्टॉक की पिछले 3 साल की एक्टिविटी यहाँ पर गिवन है। वो क्या कह रहा है यहाँ पर इस कॉलम में, वो ये कह रहा है कि इतने उसके कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग थे जनवरी 1 को। फिर उसने क्या किया, इतने शेयर्स बायबैक किए, कब? 2013 में, पूरे साल किए होंगे। और इतने शेयर्स उसने क्या किए, इशू किए अगेंस्ट स्टॉक ऑप्शंस और स्टॉक यूनिट्स। ठीक है, तो क्लोजिंग उसके इतने हो गए, मतलब ये बायबैक करेगा तो माइनस हो गए, और ये इशू करेगा तो ऐड हो गए।
तो ये आपके क्लोजिंग शेयर्स हो गए। अगले साल फिर उसने ऐसा ही कुछ किया, इतने बायबैक किए और इतने इशू किए, तो इतने क्लोजिंग बच गए। फिर इतने उसने बायबैक किए तो इतने उसके इशू किए, तो फिर ये क्लोजिंग हो गई। तो बेसिकली मुझे कौन से शेयर चाहिए अभी? यही वाले चाहिए ना। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये कॉपी किए, इनको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया। फिर मैंने ये वाले कॉपी किए, यहाँ पर पेस्ट कर दिए, इनको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इन वैल्यूज़ को क्या करना है, मिलियंस में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 1000 लिखा है यहाँ पे, इसे मैंने कॉपी किया, इनको मैंने सेलेक्ट किया, Alt+E+, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये क्या करेगा, इन वैल्यूज़ को 1000 से डिवाइड कर देगा एक बार। तो ये थाउजेंड्स में चले गए, मैं F4 कर देता हूँ, ये दोबारा डिवाइड कर देगा, तो ये डाटा मिलियंस में चला जाएगा। गॉट इट। एक तो तरीका ये था कि मैंने इसको डिवाइड कराया, दूसरा तरीका क्या था, मैं F2 करता और 6 पॉइंट के बाद डॉट लगाता, वो भी एक तरीका था। ठीक है ना, तो बेसिकली ये आपका तरीका है, आप इसको करके देखिए। अभी ये आपके क्या है जी, शेयर्स हैं। जो मेरे पिछले साल क्लोजिंग थे, जो मेरे पिछले साल क्लोजिंग शेयर्स थे, वही मेरे अगले साल क्या होंगे, ओपनिंग होंगे। यहाँ तक करो, फिर बात करते हैं। आप डायरेक्ट पेज नंबर पे आ जाओ ना, पेज नंबर 80, कंट्रोल शिफ्ट एन करो, 80, ये आपने कुछ और ओपन किया और पीडीएफ ये आपका पेज नंबर देखने यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख दो, वैसे कंट्रोल शिफ्ट एन करने से ना पेज नंबर पूछता है, सीधा सीधा टाइप कर दो। किसी पर्टिकुलर पेज पे जाना ना, तो उसके लिए ये आपने भी उसमें बोल दो कि ये ना आपने एक्चुअली पीडीएफ पूरी नहीं रखी है, ये पीडीएफ नहीं लगेगी, ये कोई और सॉफ्टवेयर आपको फोल्डर भी बता, हमें जैसे प्रोफेशन चलते हैं ऐसी की चीज़ें लगती है। नॉर्मल पीडीएफ नहीं है, तो पीडीएफ एडोब रीडर, एडोब पे काम जल्दी हो जाता है, नहीं है कॉपी तो मिलेगा, कॉपी सेलेक्ट कर लीजिएगा। थोड़ा अच्छे पॉइंट पाइएगा ऊपर से।
हाँ जी, सर वो 100 से डिवाइड करके कैसे बताया? 1000 बार लिखो एक बार कहीं पे, किसी दूसरी सेल में कॉपी करो। अब इस डेटा को सेलेक्ट करो, ऑल्ट ES, डिवाइड। अभी F4 कर दो एक बार दोबारा, हो गया। आगे बढ़े। अब देखिए ये पर्टिकुलर सेक्शन में हम लिखेंगे कितने ऑप्शन हम कन्वर्ट करेंगे, कितने हम बाय बैक करेंगे, ठीक है। फिर हमारे क्लोजिंग शेयर्स आएंगे। आइए इसी टेबल में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्या है आपके पास, ट्रेजरी शेयर्स, ठीक है। इतने शेयर्स कंपनी ने उस टाइम तक बायबैक करके रखे हुए थे, कब, जनवरी 1 को। फिर उसने क्या किया, 25 मिलियन और बायबैक कर लिए। तो जो इधर बायबैक कर रहे हैं वो इधर वो ऐड कर रहा है, पहले से इतने थे, इतने और बायबैक कर लिए। लेकिन जो वो इशू कर रहा है वो ट्रेजरी से निकाल के कर रहा है। मतलब जब बायबैक करता है तो ट्रेजरी में ऐड कर देता है, जब वो इशू करता है तो वो ट्रेजरी से माइनस कर देता है। इज इट क्लियर? तो ये क्या बच गए, क्लोजिंग ट्रेजरी शेयर्स, ठीक है। अब मुझे आप बता सकते हो कि कंपनी के पास इशूड शेयर्स कितने हैं, कैसे निकालेंगे इशूड शेयर्स? माइनस करके दोनों डिफरेंस। देखिए ये आपके आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग प्लस ट्रेजरी विल गिव यू इशूड शेयर्स। मान लीजिए मैंने 100 शेयर्स इशू किए, 20 बायबैक कर लिए, तो 20 मेरे ट्रेजरी हैं, 80 मेरे आउटस्टैंडिंग है, तो 80 + 20 करूँगा तो इशूड आ जाएंगे। तो आप किन्हीं भी, किसी को भी इन दोनों को ऐड कर लो तो भी वही अमाउंट आएगा, इन दोनों को कर लो तो भी वही अमाउंट आएगा, इन दोनों को कर लो तो भी वही अमाउंट आएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि पिछले 3 साल के एवरेज इशू एवरेज बायबैक के बेस पर हम काउंट कर लेंगे क्या, कि कितने इशू करेगी कंपनी, कितने बायबैक करेगी। इज दैट क्लियर? हिस्टोरिकल एवरेज के बेस पर। तो अब अगर आप नोटिस करो, या फिर एक काम कर ले, जो लेटेस्ट है उसका उसी को मान ले कि इतने इशू करेगी, इतने बायबैक करेगी। इज इट क्लियर? ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तो ये पूरा डाटा कॉपी कर देता हूँ, आपको करने में टाइम लगेगा, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ ये वाला डाटा ले लो जो करंट ईयर का है, ठीक है। मैं सारे कर लेता हूँ, तो क्या करूँगा मैं, देखो जरा, इसको कॉपी किया, ये बायबैक है तो इसको मैंने बायबैक में रखा और 3.6 पॉइंट पहले डॉट लगा दिया। इसके बाद ये वाली वैल्यूज हैं, इक्वल टू दिस प्लस दिस, इन पे भी 3, 4, 5, 6 पॉइंट पहले 6 पॉइंट पहले डॉट लगा दिया, इन दोनों को उठा के थोड़ा कम कर दिया। डन। अब हम मान के चलेंगे कि जितना उसने 2015 में इशू और बायबैक किया उतना ही वो आगे भी करेगा, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, 8 यहाँ पे, 9 यहाँ पे लिख लो और 22 यहाँ पे लिख लो। अब 22 आपको माइनस में लिखना है क्योंकि उसने बायबैक किया है। अगर प्लस करके लिखोगे तो नीचे फॉर्मूले में माइनस करोगे, तो एक काम करते हैं, यही कर लेते हैं, इसको प्लस में रखते हैं। तो इक्वल टू ओपनिंग प्लस ऑप्शंस कन्वर्ट्स माइनस बायबैक। अब इन तीनों को एक साथ कंट्रोल R कर दो। अब ये हमारी अजम्पशंस हैं और मैनुअल इनपुट है, तो इसको आप क्या करोगे, लाइट कलर करोगे। ये हिस्टोरिकल डेटा है इसलिए इसको भी मैं कलर कर देता हूँ। समझ गए होगे मेरी बात? आपको खाली इतना ही करना है, मैं पिछले दोनों डेटा भी डाल देता हूँ, करो जरा। हाँ जी, देखो इतने हमने बायबैक किए हैं इस पर्टिकुलर ईयर में और ये हमने इशू करे हैं 2015 में। मैंने इन दोनों को उठा करके यहाँ पे रख लिया, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली 9 है, ये भी अप्रोक्सीमेटली 23 है, ठीक है ना। तो मैंने क्या कर लिया, इसको भी 23 मान लिया, कितने हम बायबैक करेंगे और इतने हम 9
इशू करेंगे, और यही हमने फ्यूचर के लिए अज्यूम कर लिया। तो ये हमारे ओपनिंग थे, ये हमारे इशू, ये हमारे बायबैक। तो क्लोजिंग क्या होगा? ओपनिंग प्लस इशू माइनस बायबैक। अभी तो क्लियर है? चलो, दोनों को जोड़ो ना। एक तो स्टॉक ऑप्शंस होते हैं, एक स्टॉक यूनिट्स होते हैं। 6 पॉइंट्स के बाद डेसिमल लगा दीजिए। डन। किसको दिक्कत हो रही है? प्लस लगाओ ना। हमें बहुत कैसे करना, और टाइम लगाओ, कॉपी करो, और टाइम।
चलिए अब देखिए इधर, अब यहाँ पर बेसिक वेटेड एवरेज निकालना है। तो बेसिक वेटेड एवरेज तो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि जो आउटपुट आया है, ये जो हम बाय बैक इशू कर रहे हैं वो एग्जैक्टली किस पर्टिकुलर मंथ में कर रहे हैं। ठीक है, तो वेटेड एवरेज नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हम एवरेज निकाल देंगे, इन दोनों का एवरेज। ठीक है, अब ये क्या है, ये इस साल का ओपनिंग ही तो है, जो पिछले साल का क्लोजिंग वही साल का ओपनिंग, इन दोनों का एवरेज कर लिया, कंट्रोल आर। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, डायल्यूशन इक्वल टू दिस माइनस दिस, यहाँ तक निकालो। इन दोनों का एवरेज करो, पहले क्लोजिंग लास्ट तक लेके जाओ ना, सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करो आगे तक, कंट्रोल आर। अभी जो 9 और 23 जो लिखा है आपने उसको कलर कर दो, एवरेज के लिए एवरेज का फॉर्मूला लगाओ। दोनों लो, कोमा लगाया था, कोमा लगाने क्या था, सेलेक्ट कर लो रेंज, कलर केवल इनपुट होता है, फॉर्मूला नहीं। कंट्रोल जेड कर लो एक बार, केवल दो, 9 और 23, हाँ ये वाले, ये भी लाइट येलो नहीं, लाइट ब्लू ही करो, वही अच्छा लगता है। चलिए अब देखिए, ऑप्शंस के केस में, डायल्यूशन के केस में मान के चल रहे हैं कि वो कांस्टेंट रहेगा, फिर ये हमारे बेसिक होगा, ये हमारा डायल्यूशन होगा, इन दोनों को टोटल कर दो। तो डायल्यूशन हमने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया। नहीं, ये डिफरेंस है ना इन दोनों का, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस हिस्ट्री में, नीचे वाली वैल्यू माइनस ऊपर वाली वैल्यू। इधर कांस्टेंट कर लो, इक्वल टू पिछले वाला, नहीं नहीं, एस्केप करो, इक्वल टू पिछला, यही कंट्रोल बुला लेंगे। हाँ ये आगे कर दो, इन दोनों का टोटल कर दो। ऐसे कोई कन्वेंशन है कभी जो यूनिट्स में चीज है उसको डेसिमल में लिखेंगे या वैल्यू है तो डेसिमल। वैल्यू कितनी बड़ी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर होगा ये कुछ 12.85 तो बेटर है 8 दिखाओ, अब होगा 12,000.85 तो 85 का क्या करेंगे दिखा। चलिए अब आप इनकम स्टेटमेंट पे आइए, ये बेसिक शेयर्स हैं, बेसिक शेयर्स कहाँ लिखेंगे, इक्वल टू इक्विटी वाली शीट, और ये आपके बेसिक वेटेड एवरेज शेयर्स, क्लिक ऑन दिस, एंटर। उसी तरीके से डायल्यूटेड के लिए इक्वल टू, ये आपके डायल्यूटेड शेयर्स हैं, इस पर क्लिक करके एंटर, तो ये आपके शेयर्स आ जाएंगे, इक्वल टू करो, नहीं, मोस्टली कंट्रोल पेज अप था, कंट्रोल पेज अप, पेज डाउन करके देख लो, अगर इक्वल टू लगाओ यहाँ पे, फिर बताता हूँ, इक्वल टू कंट्रोल पेज डाउन, शायद फंक्शन की लो साहब, कंट्रोल फंक्शन की पेज डाउन, कंट्रोल फंक्शन की, कंट्रोल फंक्शन की पेज डाउन, छोड़ दो, कंट्रोल छोड़ दो, एक एरो, एरो की से आ जाओगे, एरो की से आ जाओगे, कोई नहीं,
एंटर कर दो। हो तो रही है, थोड़ी वो तो होगी, थोड़ी और हो जाएगी। अगर नहीं अच्छे से होता तो इवनिंग में 2 हफ्ते बाद दोबारा शुरू होगा बैच, शुरू से फिर से कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। डन। अब इसके बाद ये ईपीएस है, बेसिक एंड डायलूटेड, इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल आर करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो सीधे सीधे फॉर्मूलेज है, ठीक है ना। डन विद दिस। आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो शेयर्स आप इशू करोगे या बायबैक करोगे, इनके बदले में ऑप्शंस जब इशू करोगे तो पैसा मिलेगा, बायबैक करोगे तो पैसे आउटफ्लो होगा। उसकी कैलकुलेशन के लिए अभी हम इक्विटी शीट में वापस आए। मुझे बताओ, जो ये ऑप्शंस आप इशू कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, इनके बदले में क्या मिलेगा आपको? स्ट्राइक प्राइस, और फिर आपको उसको क्या कहेंगे? ऑप्शंस प्रोसीड्स। तो स्ट्राइक प्राइस तो प्री डिटरमाइंड होता है, वो आपको एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएगा। ये देखिए, जो ऑप्शंस हैं इसके वो कितने हैं? 43 मिलियन, और एवरेज स्ट्राइक प्राइस क्या है उनका? 56। ये ऑप्शंस हैं उसके, और ये उसका एवरेज स्ट्राइक प्राइस है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 56। जिस प्राइस पर कंपनी अपने ऑप्शंस को शेयर्स में कन्वर्ट करेगी वो क्या है? 56। तो अगर हम 9 मिलियन शेयर्स को, ऑप्शंस को 56 में शेयर्स पे कन्वर्ट करेंगे तो पे पैसे कितने मिलेंगे? इतने मिलेंगे। इसको कंट्रोलर, ये पैसा हमें आएगा, जो बायबैक कर रहे हैं उसके बदले पैसा जाएगा। तो फिलहाल आपको पहले ये करना है, करके देखो। हेलो, हाय प्रभात, कैसे हो? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक बताऊँ। हाँ, मेरी क्लास होती है ना आज। अच्छा जी, ठीक है ठीक है, बात करते हैं क्लास होने के बाद। ओके। वेरी गुड। डेसिमल कम करना सही है, बहुत सही तरीका है ये। जब फर्स्ट टाइम मुझे पता लगा था ना, मैं कहा भाई बहुत बढ़िया चीज़ मिल गई, कंट्रोलर। हाँ जी, ये तो अच्छी है बहुत। ये जो एनुअल रिपोर्ट से हम डाटा कॉपी करते हैं ना एक पर्टिकुलर कॉलम का, ये पहले ही दिन मुझे पता लगा था समर ट्रेनिंग में, लेकिन उससे पहले 2-2.5 घंटे मेरे ख़राब करवा दिए थे मेरी टीम लीडर ने। उसने मुझे कहा था कि ये डाटा इनकम स्टेटमेंट का, बैलेंस शीट का कॉपी पेस्ट करो, और मैं क्या कर रहा था? एक एक कॉपी करके पेस्ट कर रहा था। तो मुझे लग गए 2-2.5 घंटे। जो 2-2.5 घंटे हो चुके तब आकर के मुझे बताता है कि इसको ऐसे मत कर, ऑल्ट बटन दबा करके ऐसे कॉपी कर। तो मुंह पे तो मैंने उसको थैंक यू ही कहा। मैं कहा पहले नहीं बता सकता था क्या? मैं 2 घंटे से परेशान आ रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन उस वो अच्छा था, एक एक कॉपी करी मैंने। तो अब टेक्स्ट बुक्स में तो वो बैलेंस शीट आइटम्स दिखते नहीं है, इनकम स्टेटमेंट में दिखते नहीं है, लेकिन वहाँ पे जब मैं कॉपी कर रहा था तो चीज़ें दिख रही थी कि अच्छा अच्छा ये आइटम्स भी होते हैं। पढ़ तो नहीं पा रहा था इंटरनेट पे जा करके, लेकिन कुछ तो अंडरस्टैंडिंग हुई। जो मैं टेक्स्ट बुक से पढ़ के आया था वो मुझे दिख रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। और जो नहीं समझ में आ रहा था क्या है, वो मुझे पता लग गया कि ये सीखने हैं, ठीक है। और अगर ऐसे होता
उठा के मैं सेलेक्ट कर लेता। ये लेफ्ट में क्या क्या आइटम्स है पता ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो 56 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे, हाँ जी हाँ जी, 424 आता है। नहीं अपने वो डेसिमल आना नहीं दस मिनट आने वाले थोड़ा नहीं 9 वो सुनो 9 डाला है। नहीं सर मैं टाइप कर रहा हूँ, ये जो है ना ये एग्जैक्ट लाइन नहीं है। और आपने इक्वल टू किया होता तो वो 3.8 आ रहा होता। ये तो मैं डिलीट करने वाला हूँ। ये जो अजम्पशन हम ले रहे हैं 9 और 23 की, ये अजम्पशंस हम बहुत कम फाइनेंशियल मॉडल्स में लेते हैं, क्योंकि आप देखोगे ये बहुत ट्रिकी है। इनके अजम्पशन लेना आसान नहीं है हमारे लिए, और इनकी वजह से पूरा फाइनेंशियल बदल सकता है हमारा। अभी जो बन के आएगा उसके बेस पे डिसाइड कर लेंगे हमें क्या करना है। और प्लस मैंने आपको एक बात बताई थी कि मॉडल जो बनाया जाता है वो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, डीसीएफ वैल्यूएशन करना। और डीसीएफ वैल्यूएशन में इन दोनों की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोजेक्ट फ्यूचर में हम कितने शेयर बायबैक करेंगे, कितने इशू करेंगे, इससे मेरे मॉडल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। हमें तो चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्लस माइनस कैपेक्स और आपका प्लस माइनस वर्किंग कैपिटल, इनसे हमें मतलब होता है। इससे डीसीएफ वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और वो क्यों नहीं आएगा ये सारी बातें मैं आपको थ्योरी क्लास में समझाऊंगा, जब डीसीएफ की थ्योरी क्लास लूँगा। कैश फ्लो तो आएगा सभी कैश फ्लो नहीं हमें कैश फ्लोज देखने होते हैं बिजनेस से। जो बिजनेस मैं एक्वायर कर रहा हूँ वो बिजनेस कितने कैश फ्लो जनरेट करके देगा, उस पैसे से मैं कुछ भी करूँ, मैं शेयर बाय बैक करूँ, मैं बांट दूँ, मैं कुछ भी करूँ, इस बात से मतलब नहीं है। जो बिजनेस हम वैल्यू कर रहे हैं वो बिजनेस पैसा जनरेट करके कितने देगा, इससे मतलब है। तो जितना पैसा जनरेट करेगा उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो उस बिजनेस की वैल्यू होती है। हाँ नहीं, सीएफओ ही नहीं, उसमें भी चीज़ें प्लस माइनस करेंगे, नॉट जस्ट सीएफओ, ठीक है। अगर आपको हमारा इंस्टीट्यूट परचेज करना हो तो इसकी बिजनेस वैल्यूएशन होगी, ये इंस्टीट्यूट कितने कैश फ्लो जनरेट करता है उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो इस इंस्टीट्यूट की वैल्यू होगी, सारे तरह के खर्चे माइनस करके। खर्चे कौन से, जो इस बिजनेस को चलाए रखने के लिए ज़रूरी है। समझ गए मेरी बात, ठीक है। बाकी बातें 3.5-4 घंटे की थ्योरी है, उसमें देखेंगे। अच्छा रहेगा कि आप इसकी वीडियोस या पढ़ करके आओ, डीसीएफ जब कराऊंगा। है सर डीसीएफ की वीडियो आपको दी नहीं होंगी अभी तक। फाइव और सिक्स हाउस में नहीं दिया। उसमें टोटल 8 या 9 फोल्डर्स हैं, आपको 3 या 4 दिए गए होंगे। आपने फाइव और सिक्स पढ़ने के लिए डाला उसको तो प्रैक्टिकली था। 5 और 6 में क्या था, डीसीएफ और रिलेटिव था। थ्योरी नहीं है उसमें, कोई नहीं, थ्योरी मेरे पास है, मैं दे दूंगा आपको, सेव बना रखे हमने। शुरू करें आगे का। अब जो आप बायबैक करने जा रहे हो, ये बायबैक कब होगा, फ्यूचर में होगा ना। फ्यूचर में जब बायबैक होगा तो प्राइस भी फ्यूचर का होगा, और प्राइस फोरकास्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, डाइल्यूटेड ईपीएस लेके आएंगे, एक अज्यूम्ड पीई रेशो लेके आएंगे, उसके बेस पर आपका क्या आएगा, प्रोजेक्टेड शेयर प्राइस आएगा। उसके बेस पर हम अपना ट्रेजरी स्टॉक डॉलर ले आएंगे। डाइल्यूटेड ईपीएस आएगा आपकी इनकम स्टेटमेंट से। हाँ जी ठीक है, चाय के लिए बोल दिया उसको, दोबारा बोल के एक बार उसको। हाँ जी यहाँ तक हो गया। अब ये हमारी क्या है, ईपीएस है। मैं क्या करता हूँ, एक पीई रेशो मैं मान लेता हूँ कि कितनी है इसकी, जैसे अभी करंट में 43 चल रही है, करंट पी रेशो इसकी 43 चल रही है। तो अगर मेरे पास पूरे साल की एवरेज पी रेशो कहीं से आ जाए
और पिछले 2-3 साल का मैं ट्रेंड देख लूँ कि एनुअल एवरेज पी रेशो क्या चल रही है, उसके बेस पर हम एक फ्यूचर की पी रेशो जूम कर सकते हैं। फिलहाल मैं करंट की ले रहा हूँ जो कि करंट चल रही है 43, ये उसकी करंट पी रेशो है। मैं अगर मान लूँ कि यही इतनी ही रहेगी फ्यूचर में, तो क्या होगा, मेरा ये प्राइस होगा कि दिस इनटू दिस। डन विद दिस। अब ये हमारा क्या आ गया, प्राइस आ गया, जिस प्राइस पर हम शेयर्स बायबैक करेंगे फ्यूचर में, तो इक्वल टू 23 इंटू 125, इतना अमाउंट हमारी जेब से जाएगा। अब ये एक मॉडल है, सुनिए मेरी बात, ये मॉडल है एक पैटर्न। एक तो इसमें जो अजम्पशंस हमने ली हैं दैट मे नॉट बी क्लोज टू रियलिटी, मे नॉट बी, ठीक है। जो अजम्पशन मैंने खाली करंट का देख करके कर ली वो सफिशिएंट नहीं है। वी शुड ऑल्सो लुक एट द रिसर्च रिपोर्ट गिवन बाय अदर एनालिस्ट कि वो लोग क्या समझते हैं इस कंपनी के बारे में। इज दैट क्लियर? आपके पास 3-4 रिसर्च रिपोर्ट और अवेलेबल हो जाएंगी जब आप ऑफिस में काम करते हो। उनको देखोगे तो आपको देखेंगे कि किसी ने 15 लिया हुआ है, किसी ने 20 लिया हुआ है, किसी ने 25 लिया हुआ है बाय बैक, तो आप शायद उसका कोई एवरेज अमाउंट उठा लोगे, क्योंकि आप क्या अजम्पशन ले रहे हो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि बाकी लोगों ने क्या अजम्पशन ले रखी है और लोग इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट क्या बताता है, वो सारी चीज़ें भी आपको देखनी होती हैं। बट मैंने आपको क्या बताया कि हम एक बार ना एक मॉडल बना लेते हैं शुरू से लेकर आखिर तक, फिर जो उसकी अजम्पशंस हैं उस पर आप जितना मर्जी काम करना चाहो कर सकते हैं। एक बार मॉडल बनाना आ जाए, एक्सेल पे काम करना आ जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फोरकास्ट करने के क्राइटेरिया समझ में आ जाए, लिंक कैसे बनते हैं वो समझ में आ जाए, तो एक पहला मॉडल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब आप 3-4 मॉडल और बना लोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बन जाएगी, एटलीस्ट फाइनेंशियल मॉडल से संबंधित बन जाएगी। उसके बाद जो अजम्पशंस हम फॉर्म करते हैं वो तो भैया लाइफ टाइम जर्नी है, आप कितने भी सीख सकते हो। आप बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स की आप 4-5 रिसर्च रिपोर्ट निकाल के देखो तो आप देखोगे सभी इन्वेस्टमेंट बैंक्स की अजम्पशंस अलग अलग होती है, थोड़ी अलग होंगी या ज़्यादा अलग होंगी वो डिपेंड करता है, बट डिफरेंट होती है, सेम तो कभी होंगी ही नहीं, ठीक है मेरी बात। तो आप लोगों को फोकस करना है कि प्रोजेक्शन के क्राइटेरियाज क्या हैं, अजम्पशन किन बेसिस पर हम फॉर्म कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए, और मॉडल जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद अजम्पशंस पे काम होता है, मेरी बात समझ रहे हो। मॉडल जब कंप्लीट हो जाएगा देखेंगे कि इन अजम्पशन की वजह से हमारे जो कैश फ्लोज हैं, हमारे जो प्रॉफिट्स हैं, हमारा जो आउटपुट है वो रियलिटी से दूर जा रहा है, तब हम अजम्पशंस को चेंज करेंगे। इज इट क्लियर? अगर मैं आईबी इंस्टीट्यूट का फाइनेंशियल मॉडल बनाता हूँ तो मैं पहले मॉडल बनाऊंगा, फिर उसमें इनपुट करूंगा कि भाई मंथली या क्वार्टरली हमारे पास कितनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स आती हैं, पर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हम जनरली कितना चार्ज करते हैं या हम आगे करेंगे, नंबर ऑफ ऑनलाइन सेल हमारी कितनी होती हैं, हम कितने करने की उम्मीद कर सकते हैं, या फिर हम फेस टू फेस में कितने स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं जिसकी फीस फिक्स्ड है। समझ गए मेरी बात? तो पहले एक मॉडल बनेगा ना, फिर उसमें देखेंगे भाई कितना कितना एक्सपेंस करेंगे, फिर हम देखेंगे भाई चलो एक काम करते हैं, गूगल फेसबुक पे बढ़ाते हैं एडवर्टीजमेंट, बढ़ाएंगे तो उससे कितने कम से कम इन्फ्लोज ऑनलाइन या फेस टू फेस में चाहिए ताकि एटलीस्ट हमारा ब्रेक इवन निकल जाए। एक टारगेट प्रॉफिट के लिए हमें कितनी एडवर्टीजमेंट करें और कितने हमें एडमिशन चाहिएंगे। समझ गए ना मेरी बात? ये सारे आंसर कौन देगा? मॉडल देगा। तो जितना आपका मॉडल की एक्यूरेसी होगी उतनी आपकी मॉडल के आउटपुट की एक्यूरेसी होगी। इनपुट करेक्ट, आउटपुट इज करेक्ट, ठीक है। मॉडल ठीक बना होना चाहिए, प्लस माइनस उसके सारे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर होने के बाद अब आप बैलेंस शीट पर आ सकते हैं। उसमें भी सर आपने यही किया होगा फिर,
यही किया हुआ है। यहाँ पर ना इक्वल टू ये मत करना, यहाँ पे 23 टाइप कर देना, वही है ना, टाइप करो, मैच हो गया। आइए देखिए, ये मेरी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में ये मेरी इक्विटी है। देखिए इधर कॉमन स्टॉक का क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, और क्यों? कॉमन स्टॉक होता क्या है? जो हमने मतलब मार्केट में स्टार्टिंग मार्केट में किन के, आउटस्टैंडिंग के या किसके? यहाँ पर ये होता है फेस वैल्यू ऑफ इशूड शेयर्स इंक्लूडिंग ट्रेजरी, इंक्लूडिंग। लेकिन इंडियन बैलेंस शीट में ऐसा नहीं है। इंडियन बैलेंस शीट में जो ट्रेजरी होता है वो उसका कॉमन स्टॉक ऊपर से निकाल दिया जाता है। ये लोग क्या करते हैं यूएस वाली बैलेंस शीट में, जनरली ऊपर जो इशूड शेयर्स की कॉमन स्टॉक जुड़ी रहती है, नीचे ट्रेजरी स्टॉक माइनस कर देते हैं। इंडियन बैलेंस शीट में ट्रेजरी स्टॉक नाम की आइटम ही नहीं होता, क्योंकि वो लोग ऊपर ही माइनस करते हैं, नीचे से माइनस नहीं करते। नेट दोनों में बराबर है, समझ गए ना, नेट बराबर है, चाहे यूएस हिसाब से कर लो इंडियन हिसाब से कर लो, नेट जो आएगा वो बराबर है। बट ये लोग ऊपर से माइनस नहीं करते। तो अभी हम जो शेयर्स इशू कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं? ट्रेजरी से निकाल के। बायबैक करते हैं तो कहाँ पे डाल देते हैं? ट्रेजरी में डाल देते हैं। तो जब तक सारे के सारे ट्रेजरी शेयर्स मैं री इशू नहीं कर दूंगा और उसके ऊपर और इशू नहीं करूंगा, मेरा इशूड शेयर्स बढ़ेगा ही नहीं, तो मेरा कॉमन स्टॉक भी नहीं बढ़ेगा। मेरी बात क्लियर होगी ना? शुभ, क्लियर है ना? अभी तो मैं ट्रेजरी में डालता हूँ, ट्रेजरी से निकालता हूँ। अगर मैं सारे के सारे ट्रेजरी शेयर्स री इशू कर दूं, उसके बावजूद और इशू करूंगा, तब मेरा कॉमन स्टॉक बढ़ेगा, तब तक नहीं। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको कांस्टेंट रखेंगे। देख लो एक बार। नेक्स्ट आइटम क्या है? एडिशनल पेड इन कैपिटल। इसमें क्या आएगा? पुराना एडिशनल पेड इन कैपिटल प्लस इनकम स्टेटमेंट से क्या आएगा? ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस, प्लस इक्विटी वाली शीट से क्या आएगा? ऑप्शन प्रोसीड्स। याद है आपको मैंने 3 चीजें बताई थी, एपीआईसी में क्या क्या आता है? एसबीसी, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड ऑप्शन प्रोसीड, ये तीनों चीजें यहाँ पे डालते हैं। रिटेन अर्निंग इक्वल टू पिछली रिटेन अर्निंग प्लस इनकम स्टेटमेंट से ये वाली रिटेन अर्निंग। ये दोनों आइटम कांस्टेंट, इन पे हमने कोई काम नहीं किया है। फोर्थ आइटम क्या है? पिछला ट्रेजरी प्लस इस बार का ट्रेजरी दिस, लेकिन मैं माइनस करके लेके आऊंगा क्योंकि ये भी माइनस है और वो दूसरा प्लस में है, तो प्लस को माइनस अटैच करूंगा तभी माइनस माइनस जुड़ेगा, और ये वाला अमाउंट, तो अब ये भी माइनस हो गया, वो भी माइनस होगा, दोनों जुड़ जाएंगे। उसके बाद ऑल्ट इक्वल कंट्रोल आर। अब आप नोटिस करेंगे तो हमारी इक्विटी कंटिन्यूसली नेगेटिव रेंज में जा रही है, जो कि एक सही साइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे? जो करेंगे वो बाद में करेंगे, पहले आप इतना तैयार करिए। मतलब हमारे assumptions गलत हो गई हैं, उन पे करेंगे काम, पहले यहाँ तक प्रिपेयर करिए। हाँ जी, अब देखो, सबसे पहले तो देखो हमारी जो इक्विटी है वो कंटिन्यूस बेसिस पे नेगेटिव 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 जा रही है, जो कि नहीं जानी चाहिए। अब लेकिन आप ये भी कहोगे सर पिछले साल नेगेटिव कैसे चलेगी? इसके 2 कारण हैं। एक तो अगर आप इनकम स्टेटमेंट में जाके चेक करो, मैंने आपको बताया था ना एक ऐसा आइटम आ गया जो वन टाइम का है, ये वाला, अगर इसको मैं 0 कर दूंगा, अब मेरी इक्विटी देखिएगा कितने पोजीशन में, अभी तो जाएगी नहीं क्योंकि वो हिस्टोरिकल डाटा मैनुअली पंच है। लेकिन हम उसको अगर मैं 0 कर दूं तो 1000 रुपये वहाँ पे बढ़ेगा, तो रेंज पॉजिटिव अपने आप ही हो जाएगी। तो इसको तो मैं अपने आप वापस सेम कर देता हूँ। लेकिन जो हम बायबैक कर रहे हैं, वो बहुत हैवी अमाउंट में हो रहा है, इसको कम करना पड़ेगा। 2 कारण हो सकते हैं बायबैक इतना बड़ा होने के कारण।
एक तो जो हमारा प्राइस है वो बहुत ऊंची रेंज में आ गया है, या तो हमारी पी रेशो हमने गलत ले ली, ठीक है, या फिर हमारी ईपीएस गलत है, कोई तो एक कारण है, बोलो। तो फिलहाल तो हम यही कर लेते हैं कि हम जितना हम इशू कर रहे हैं उतना ही हम बाय बैक कर लेंगे, नहीं समझे? देखो मेरी जो इक्विटी है वो बहुत हैविली एक नेगेटिव रेंज की तरफ आगे बढ़ रही है, बढ़ रही है ना। इसको ठीक करने का तरीका क्या है? या तो मैं जो बायबैक का प्राइस है वो कम करूं, ठीक है। इसको कम करने का क्या तरीका है भाई? प्राइस कम किया जाए, पीई रेशो कम करी जाए, या फिर ऊपर जा कर के ये नंबर ऑफ शेयर्स जो बायबैक के हैं उन्हें कम किया जाए। तो मैंने नंबर ऑफ शेयर्स कम कर दिए क्योंकि ये मेरे हाथ में है काफ़ी रेंज तक, जितने मैं इशू करूंगा उतने ही बायबैक कर ले रहा हूँ। उससे अगर आप चेक करोगे तो आपकी इक्विटी पहले साल में थोड़ी सी पॉजिटिव और उसके बाद कंटिन्यूसली एक पॉजिटिव रेंज में बढ़ना शुरू हो जाती है। यही हमारा ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं अभी फ़िलहाल एक मॉडल बना रहे हैं। मॉडल बनने के बाद आप इन चीज़ों को प्लस माइनस करके जो आप चीज़ों को देखना चाहते हो, जिस लेवल पे चीज़ों को ले जाना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप कर करके इसमें देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इक्विटी शेड्यूल में जा करके जो आपने ये 23 लिखा था उसको 9 कर दीजिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि हमारा इक्विटी लेकर जब इसके देखिए ऐसा होता है, आपको ये किसको देना है, कोई भी लॉजिक। हाँ जी, मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको चीज़ें। अगर अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए करना है तो आपको सिर्फ ये मॉडल्स पे काम करना है, इंटरप्रिटेशन तो कुछ वो कर ही नहीं सकते। इंटरप्रिटेशन क्या करोगे कि भाई अगर आप एक साइड में बैठोगे ना जब, तब आप उसकी इंटरप्रिटेशन करोगे, यानी कि आप लोन देने वाले हो या फिर लोन दिलवाने वाले हो, कुछ तो हो, आप इन्वेस्टर हो या फिर एक लीड मैनेजर हो। जब तक आपका एक व्यू पॉइंट नहीं होगा तब तक इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे, ठीक है। ओवरऑल अगर एक जजमेंट लेना हो तो आप इसकी रेशियोज पे काम करोगे, इसके प्रॉफिट्स कैश फ्लोज देखोगे भाई क्या चलते आ रहे हैं। तो आप एक काम करो, एक पॉइंट ऑफ व्यू उठाओ और वो है आपका कि आपको इसके शेयर्स में ट्रेड करना है या नहीं करना, ये डिसाइड करना। एक व्यू तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप टेबल के इस तरफ बैठ गए तो दूसरे एंगल से सोचोगे, टेबल के दूसरी तरफ बैठ गए तो फिर दूसरे एंगल से सोचोगे। लोन लेने वाले हो तो अलग एंगल है, लोन देने वाले हो तो अलग एंगल है। तो आप एक काम करो, ये सोचो कि आप एक इन्वेस्टर है, आपको इसके शेयर्स में ट्रेड करना है या नहीं करना ये डिसाइड करना है। तो जब मैं ये सोचता हूँ तो उसके लिए तो मुझे इनकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे डीसीएफ करना है या रिलेटिव करना है, मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सर ये आपकी चाय रखी कुछ नहीं करना, शायद आपने एक्स्ट्रा नहीं डन भाई यहाँ तक, ठीक है। अब आप बैलेंस शीट में जो रिमेनिंग आइटम्स हैं, सबसे पहले तो माइनॉरिटी का ही काम फिनिश कर लेते हैं। एक ही आइटम तो बचा ना, आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसका क्या करोगे? देखो इक्वल टू पिछला माइनॉरिटी प्लस इनकम स्टेटमेंट से माइनॉरिटी इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये जुड़ेगा और इसमें से कितना डिविडेंड दे दिया माइनस माइनॉरिटी डिविडेंड को माइनस कर लिया जाएगा। इसका जो डिफरेंस है वही तो रिटेन किया, बाकी तो दे दिया। तो हमने 167 जोड़ दिया, 141 घटा दिया, एंटर करने पर ये वैल्यू आ गई। पहले से 255 था, बाकी इस साल कुछ रिटर्न हो गया। कंट्रोल आर, ये टोटल इक्विटी है, इसको भी कंट्रोल आर, ट्राई करिए। आप भी बिस्कुट ले लो, आप ही लो। खा लो ना सर। सर थैंक यू सर।
आगे बढ़ेंगे। डन। शुरू करें। राष्ट्रीय वनगणना ये तो इस साल की है, इसी में राष्ट्रीय वनगणना करेंगे। रोहित जी आप ना कल का टाइम निकाल लेना, ये मॉडल बना लेना एक बार दोबारा अपने हाथ पूरा से। फ्रेश शीट पर। हाँ पूरा फ्रेश बनाओ जीरो से, एक बार बना लिया ना आप देखिए कॉन्फिडेंस, खुशी महसूस होगी अपने आप में कि हमने मैच बैलेंस शीट मैच कर दी। हाँ दे दूंगा मैं अगर आपको चाहिए भाई, वैसे तो इसको डिलीट कर सकते हो आप, डाटा प्रोजेक्शन डिलीट करने खाली, ये तो मैं डिलीट करके देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। हाँ, एक बार डिलीट करके उसको save कॉपी कर लूँगा। डबल कॉपी कर लो ना, डबल कॉपी करके एक को डिलीट कर दो एक को रख लो। ठीक है, वो कर। और बाकी में जो वीडियोस है ना उसमें आप देखोगे तो मैं एक एक डाटा कॉपी भी करा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर तो मैंने कॉपी करके दिया था, लेकिन जो ये वीडियोस हैं आप लोगों को टाइम मिल नहीं पाता ना। इसमें जाना कोलगेट वाले में, यहाँ पर देखो इसमें वीडियो था सर, ये मिले नहीं हमारे को, हो सकता है, ये मैं तो वही समझ गया, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है दिखाओ जरा चलिए नहीं मिले। क्या ये ये मैंने किसी को एक्सेल का नहीं फिर आपको ये वीडियो दिया हुआ था ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, अभी ये इसमें थ्योरी होगी आपकी, ये थ्योरी दोबारा वाली होगी जो दोबारा आपको दी, तो पिछली किसी और क्लास के रिकॉर्ड वीडियो फर्स्ट वाली क्लास के इसके भेजे हैं जो हमारे कैश फ्लो था। ये तो शायद पुरानी वीडियो है जो मैंने हाँ जी, कहीं और पुराने रिकॉर्ड की, पुराने और ये मैंने यहाँ तक की देखी नई वाली वीडियो भेज दी थी आपने मेरे को, वो आ गई। आगे है ना, हाँ मतलब लास्ट क्लास के नहीं है बस। लास्ट क्लास के, मैं वो लास्ट क्लास के भी देता हूँ। ये अभी लेके जाना आप, पेन ड्राइव रखी होगी क्या पे, है यहीं पे रखी है कहीं, कोई बच्चा वगैरह है मेरे पास, मैं इसमें डाल के दे देता हूँ सारी आपको। वो ना क्या होता है हमारा पैटर्न ये रहता है कि जब सेकंड इंस्टॉलमेंट आ जाती है ना तब हम टोटल सारी वीडियोस देते हैं, पहले हाफ पूरी क्लियर होने के बाद बाकी की हाफ। क्योंकि एक दो बच्चों को क्या हुआ वो वीडियोस पसंद आ गई, तो सर ऐसा यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ऐसे वहाँ पढ़ा रहे हैं, छोड़ो इसी वीडियो से ही कर लेंगे, तो फिर अंकुर ने सोचा कि कैसा कर लेते हैं एक बार, मैं ठीक है देख ले जैसा ठीक है। चलो जी शुरू करें। अब ये आइटम हमारा डेट का जो है वो तो अभी बाद में आएंगे, एक आइटम ये 2 आइटम, टोटल 3 आइटम डेट के हैं, डेट आइटम डेट शेड्यूल में फोरकास्ट करें। बाकी लायबिलिटी साइड हमारी पूरी हो गई है। ऊपर एसेट्स में आओ, यहाँ पे 2-3 आइटम जो रहते हैं, 2 भी नहीं है केवल ये एक है, ये देखिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इस पे काम शुरू करें। शेड्यूल्स पे आ जाइए, यहाँ पे करेंगे इस पे काम। इक्विटी इनकम फ्रॉम एसोसिएट्स, डिविडेंड रिसीव्ड, इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। देखिए जो इन्वेस्टमेंट अगर मैं आपको ये लॉक कर दूँ ना तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ये देखो इसका कॉलम का ध्यान रखना कि डेटा कहाँ पर है, ये 2013 के कॉलम में है और बैलेंस शीट का जो फर्स्ट डेटा है वो 2014 के कॉलम में है, ठीक है। हाँ जी
ये इनकम स्टेटमेंट है ना आपका, रो नंबर 26। इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैसे निकाली हमने? निकाली नहीं है, बैलेंस शीट में दो आइटम पड़े हुए हैं। पहले तो हिस्ट्री का डाटा होगा ना, फोरकास्टिंग की बात अभी करेंगे। फिनिश विद दिस। अब आप इक्विटी में आ जाइए, यहाँ पर इक्विटी में नहीं, शेड्यूल में देखिए। अगर मैं, मेरा इन्वेस्टमेंट पिछली बार कितनी थी, 31 की। इस 31 के बेस पर मेरी इनकम कितनी बनी, 8 रुपये की। अगर ये 8 रुपये मुझे रिसीव नहीं होते तो मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाती, 39। देखो मेरी 31 थी इन्वेस्टमेंट, इस 31 के बेस पर मुझे 8 रुपये मिलने चाहिए। इनकम है ना, ये तो कैश रिसीव तो नहीं है। तो अगर ये मुझे एक भी रुपया नहीं मिला तो इन्वेस्टमेंट बढ़ के मेरी कितनी होगी, 39, मतलब 5 मिला है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, इक्वल टू दिस प्लस दिस माइनस दिस, या फिर मैं डायरेक्ट 5 भी लिख सकता था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि परसेंटेज डिविडेंड कितना मिला। देखो इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, लगभग 66%, 62%। हम मान लेते हैं कि 62% या 63% ही मिलता रहेगा फ्यूचर में भी। बताओ जरा, कौन बताएगा क्या करना पड़ेगा। ये क्या माना हमने, इनकम का 63 मिलेगा, तो ये तो मेरी इनकम, इतना मुझे मिलेगा, तो ये मेरा डिविडेंड। बताओ, यही तो डिसाइड किया ना हमने। पहले पता लगाया डिविडेंड कितना मिला, फिर पता लगाया कि परसेंटेज कितना था, परसेंटेज हमने मान लिया, इस परसेंटेज के बेस पे डिविडेंड निकाल लिया। अब इसके बेस पर हम क्या निकालेंगे, क्लोजिंग, कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इतना था, इतनी हमारी इनकम, इसमें से हमें इतना रिसीव हो गया, तो बचा वो ये है। मेरे ख्याल समझ में तो आ ही गया होगा, करके देखिए। इक्विटी इनकम फ्रॉम एसोसिएट कॉपी का भी करना। अब देखिए, ये जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट आया, इसका क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट में डाल देंगे। तो बैलेंस शीट में आइए, यहाँ पर इक्वल टू शेड्यूल्स एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, कंट्रोल आर।
डन। अब आप मुझे बताओ क्या क्या आइटम बच गए। एक तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मार्केट सिक्योरिटी और इधर डेट, ठीक है ना। तो डेट के लिए मुझे क्या चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अभी हम शुरू करेंगे शिफ्ट F11 करके कैश फ्लो स्टेटमेंट। मोस्ट प्रोबेबली 6 o'clock तक हो जाएगा हमारा काम, है ना। वीडियो जरूर है, हाँ जी, वीडियो जरूर है। कौन से वाली सर? अभी जो बना रहा हूँ नहीं, अभी तो फिर रेंडर होने में टाइम लगता है ना। पिछले वाली तो डाल देता हूँ एटलीस्ट, पिछले वीक, पिछले वीक वाली नहीं दे रखी ना। इसको तो देखो बनाने में लगेगा टाइम, अभी तो वेट नहीं करेंगे। पिछले वाले देना चाहो वैसे आपको ना, आपको तो दे रखी है हमने, सारी वीडियो दे रखी है आपको, टोटल सारी टोटल आपके पास है, आपको पूरा दे रखा है कोर्स। आपने जो दिखाया था इसी मॉडल की वीडियो थी क्या? हाँ जी, वो बस पुरानी है, वो है छोटी छोटी क्लिप्स के में पार्ट से बना रखे 5-5 मिनट की। ये तो पूरी 2 घंटे की एक साथ रिकॉर्ड हो रही है। वो 5-5 मिनट की है, 2-3 देख ली फिर चले गए, फिर 2-3 देख ली निकलते पड़ते, वो उस टाइप से है। हाँ जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताइए, कौन बताएगा? CFO, CFI और CFF। ये तो एक्टिविटीज हुई, CFO कैसे निकालते हैं? उसके बाद जितनी भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होंगी वो हम ऐड करेंगे, और उसमें से जो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग होंगे हम माइनस कर देंगे। इन्वेस्टिंग वाले में जो ऊपर हमने माइनस करी है कैश CFO कैसे निकालते हैं? वही होगा ना, जितने भी ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग कैसे आ गया जब CFO ही हो गया? जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं वो हमने ऐड करी, और जो हमारे इन्वेस्टिंग होंगे वो हमने माइनस कर दी, वो हमने नीचे जाके इन्वेस्टिंग में ऐड कर दी। नहीं, ऐसे ढंग से नहीं होता। So CFO minus PAT, NCC, then changes in assets, current asset changes in current liabilities, then adjustments, interest, dividend, deferred taxes. उसके बाद हमारा CFI डेफर्ड टैक्स तो NCC में ही चला गया ना, then investing activities आएंगी, वो CFI में है। CFI हो गया, उसमें भी हमारी इंटरेस्ट और डिविडेंड की जो हमने ऊपर लेस करी है वो ऐड होगा। ठीक है, लिखिए प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन, उसके बाद इंक्रीज डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अब देखो मैंने क्या लिखा है, अगर करंट एसेट इंक्रीज हुए तो ब्रैकेट्स में, ब्रैकेट यानी कि माइनस, और अगर डिक्रीज हुए तो प्लस में, क्योंकि करंट एसेट डिक्रीज होएंगे तो पैसा जनरेट करेंगे।
रख दे बेटा, मैं आ रहा हूँ। एक बार जरा देख लो, मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगा अभी। ये चारों आइटम आपको कहाँ मिलेंगे? इनकम स्टेटमेंट में। तो मैं ये 4 लिंक करके चला जाता हूँ, फिर 2 मिनट में वापस आता हूँ। इनकम जो लेनी है बिफोर माइनॉरिटी वाली लेनी है। अगर आफ्टर वाली लोगे तो माइनॉरिटी फिर ऐड बैक करना पड़ेगा, तो आप बिफोर वाली ले लो। डेप्रीशिएशन कहाँ से मिलेगा? सेम वहीं पे देखो, ये रहा डेप्रीशिएशन, उसके नीचे अमोर्टाइजेशन, और फिर एक क्या है? स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन, वो है ये रहा 164। यहाँ तक आप लोग सॉल्व करिए, आई कम बैक। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद क्या करेंगे? चेंज इन करंट एसेट्स। चेंज इन करंट एसेट के लिए क्या करना है देखो जरा, इक्वल टू सम किसका? बैलेंस शीट में इन तीनों आइटम्स का। अभी ब्रैकेट क्लोज करनी पड़ेगी, कुछ लोग सीधा माइनस लगाना शुरू कर देते हैं। पहले इसको क्लोज करो तभी तो सम आएगा। माइनस सम किसका? इन तीनों का, ब्रैकेट क्लोज। अब इस साले करंट एसेट माइनस पिछले साले करंट एसेट, ये क्या हुई? 130 करंट एसेट प्लस होकर के आया, तो कैश फ्लो के लिए क्या होना चाहिए? माइनस। तो ब्रैकेट स्टार्ट करो, स्टार्टिंग में आओ, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, और लास्ट में जाके एक ब्रैकेट और। ठीक है, माइनस अपने आप लग जाएगा। अगर ये माइनस आता 139 तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। नेक्स्ट है चेंज इन करंट लायबिलिटीज, तो सम बैलेंस शीट। देखिए ये 3 आइटम्स हैं, ब्रैकेट क्लोज माइनस सम, कौन से? ये तीनों आइटम्स। इसके अलावा जो ऊपर जो दोनों आइटम्स हैं वो डेट है, तो उसको चेंज इन डेट में देखेंगे फाइनेंसिंग में। ठीक है ना, और तो कुछ है नहीं इधर करंट लायबिलिटी में। करंट कंट्रोल आर, यहाँ तक करो आप। इसको जरा पॉज कर देता हूँ। अब ये एक आइटम है हमारे पास, इक्विटी इनकम फ्रॉम एसोसिएट, वो हमारी इन्वेस्टमेंट से इनकम है, तो उसको यहाँ से माइनस कर देंगे। इक्वल टू माइनस, माइनस क्या करेंगे? इनकम स्टेटमेंट से ये जो आइटम है ना 8.16, इसको मैंने लेस कर दिया, और जो एक्चुअल रिसीव हुआ उसको मैं यहाँ पर डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएट उसे ऐड कर दूंगा। तो इक्वल टू शेड्यूल्स, और ये 5.14 इसे यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है आपने? हाँ जी, इंटरेस्ट नहीं है अभी इंटरेस्ट वैसे है नहीं हमारे पास, लेकिन उससे कॉस्ट नहीं है। अभी तो है नहीं इंटरेस्ट एक्सपेंस, लेकिन अगर आप चाहो तो वो काम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो जो पैटर्न था वो इंडियन पैटर्न है, जो आप कह रहे हो ना इंटरेस्ट एक्सपेंस हम ऐड कर दें फिर फाइनेंसिंग में पे कर दें, ये लोग ऐसा नहीं करेंगे यूएस वाले। तो उसके हिसाब से देखना, इंटरेस्ट तो पार्ट ऑफ द ऑपरेशन। वो इंटरेस्ट पेड को तो मानते हैं ऑपरेटिंग, लेकिन डेट को लेना देना, डेट की बोरिंग और रीपेमेंट मानते हैं फाइनेंस। जी नहीं, 8.16 है ये, डेसिमल बढ़ा के देखो।
डिविडेंड कहाँ से आएगा? शेड्यूल्स में देखो, डिविडेंड रिसीव्ड करके होगा। डिविडेंड रिसीव्ड। हाँ जी, क्या माइनस करो ना ऊपर, ऊपर का माइनस लगा दो। शॉर्टकट करने लग गया था, शॉर्टकट करने लग गए। जैसे वैसे सीखते हैं सर, फेस टू फेस में बड़ा फर्क पड़ता है। वीडियो सही बहुत है सर, वीडियोज बहुत अच्छी बनी हुई है। वो उसमें डिपेंड करता है बंदे की डेडिकेशन और कंटिन्यूटी के हाँ ऊपर, वो ठीक है? चीज़ जरूरी है, लेकिन टाइम निकाल के यहाँ पे आना लाइक तपस्या है। ये तो मजबूरी हो गई, भाई आना ही आना है। यहाँ तो ढकाई है अपनी ना वीडियोस भाई। में तो भाई बाय चॉइस है, यहाँ तो आगे तो बैठ के 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा तो कोर्स। चॉइस पर चीज़ नहीं होती है। हाँ जी, हाँ जी, ये बात सही आप है। फेस टू फेस बैठ के यहाँ तक क्लियर है सब? अब हम शुरू करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इक्वल टू माइनस, क्योंकि पैसा जाएगा तो माइनस में कैश फ्लो के लिए होगा। ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और उसके बाद इंटेंजिबल हमने कुछ नहीं लिए थे, 0। फिर इनका टोटल करोगे तो ये आएगा। इक्वल टू करो, मैं बताता हूँ क्या करना है उसका। इक्वल टू सम, क्या हुआ है, कंट्रोल पेज ऑफ, लाइबिलिटीज वाले सेक्शन में चले जाओ, तीनों आइटम ले लो इकट्ठे। सम माइनस 6 साल, ठीक है। सब ठीक है, बढ़िया करना है। हाँ तो बढ़ गया, अगर कोई बात नहीं ना, प्लस में आएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन वाली शीट में है ना, इक्वल टू माइनस डेप्रिसिएशन की शीट, एंड हियर वी हैव कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लिक ऑन दिस एंड एंटर, you will get your values. मैं तो इंग्लिश देखे थे कैश फ्लो दिए, तो अगर कैश फ्लो क्या थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया वही इतना ज़्यादा नहीं तो क्या पढ़ना है। तो आपको देखे उतना देखे बनाया किसी परसों बैठ गए वो बनाए हुए न्यूमेरिकल जो दिए थे क्लास में, जो हमने किए थे। वो थी मैं सिर्फ ऑफिस का काम किया हूँ ऑफिस का हो जाए वही बहुत है, वही बढ़िया है। चलिए अब देखते हैं, डिविडेंड पेड इक्वल टू माइनस सम, सम नहीं करेंगे, इक्वल टू माइनस इनकम स्टेटमेंट, और ये आपका कॉमन डिविडेंड, इसके जस्ट नीचे है माइनॉरिटी डिविडेंड, तो इस पर क्लिक करके एंटर, और माइनॉरिटी के लिए ये माइनस, कंट्रोल आर। अगर आप कंपनी के एनुअल रिपोर्ट देखोगे ना, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, इसने जो अपने डिविडेंड पेड दिया है वो एक ही आइटम में, एक ही में दे दिया, इसमें माइनॉरिटी भी इंक्लूडेड है। मैंने आपको बताया था माइनॉरिटी मैंने कहाँ से उठाया, डिस्कस हुआ था ना। हमने इक्विटी शेड्यूल से उठाया, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी से उठाया था, क्योंकि ये वो डिविडेंड है जो इस साल पे हुआ, इसमें पिछले साल का कोई डिविडेंड भी हो सकता है इंक्लूड, प्लस कॉमन डिविडेंड के अलावा डिविडेंड्स भी होते हैं, वो भी इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से ना उठा करके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से डिविडेंड उठाया था। चलिए ऑप्शन प्रोसीड्स, इक्विटी शेड्यूल, ये आपके ऑप्शन प्रोसीड्स हैं, ये प्लस हो आई, और ट्रेजरी में माइनस कर दिया मैंने, ये गई होगी। इसके बाद अब डेट शेड्यूल बनेगा हमारा। चलिए यहाँ तक करिए।
एक शीट और इंसर्ट करनी पड़ेगी जी। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री कैश बिफोर डेट, डेट से पहले कितना कैश जनरेट किया। फिर हम क्या करेंगे ऐड करेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस, लेस करेंगे मिनिमम कैश बैलेंस, फिर आएगा हमारा फ्री कैश फॉर डेट, डेट के लिए कितना कैश है, ये है डेट से पहले कितना अवेलेबल है। ओपनिंग भी हमारे पास होगा, जो मिनिमम हमें कैश चाहिए वो माइनस करेंगे, फिर जो कैश डेट को रीपेमेंट करने के लिए या बोरोइंग करने के लिए जो होगा उसको यूज़ करेंगे। पहले यहाँ तक करिए। देखिए इधर फ्री कैश बिफोर डेट, ये पहले 3 सालों में नहीं निकालना, हमें 16 में निकालना। तो इक्वल टू कैश फ्लो स्टेटमेंट, सबका ध्यान सामने, ऑपरेटिंग प्लस ये इन्वेस्टिंग प्लस सम ऑफ दीज 4 आइटम्स एक्सेप्ट डेट। डेट से पहले का मतलब ये हुआ ना कि डेट को मत लेना, डेट को ले लिया तो इंक्लूडिंग हो गया। डेट से पहले कितना कैश जनरेट किया, अब ये जितना कैश आएगा उसके बेस पे डिसाइड करेंगे कि हमें बोरोइंग करनी है कि हमें रीपेमेंट करनी है, और कितनी करनी है कितनी नहीं करनी है, ठीक है ना। ये देखो, ये जो 25 है या ये जितने भी अमाउंट्स आ रहे हैं, ये वो कैश है जो हमारे पास, जो हमने इस पर्टिकुलर ईयर में जनरेट किया, बट हमारे पास पहले से भी तो कुछ पड़ा होगा। वो क्या है, इक्वल टू बैलेंस शीट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस मार्केट सिक्योरिटी, दैट आल्सो कैन बी यूज्ड एज कैश। अगर हमारे को पेमेंट करनी पड़ी तो हम इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमने इन दोनों को ऐड कर लिया। अब मेरे पास कितना कैश है, इन दोनों का टोटल मेरे पास अवेलेबल होगा। बट अगर मैंने सारा यूज़ कर लिया डेट की पेमेंट के लिए तो बिजनेस कैसे करूँगा मैं। तो वो मैं क्या करूँगा, एक सर्टन परसेंटेज, लेट से 2% ऑफ सेल्स, वो मैं बैलेंस शीट में रखूँगा, यानी कि इक्वल टू दिस इनटू सेल्स ऑफ द ईयर, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल आर, यहाँ तक तैयार करिए, फिर बात करते हैं। इक्वल टू दिस प्लस दिस माइनस दिस, इसको 1% कर दें, ठीक है। बाद में एक बार जब मॉडल कंप्लीट हो जाएगा तब आप कम या ज़्यादा जो करना चाहो कर सकते हो। फिलहाल एक बार इसे कैलकुलेट करिए। देखो जरा एक बार सामने। इसके बाद क्या करना है आपको, जो डेट के आइटम्स हैं उन सबको सामने लेके आना है। क्या क्या आइटम्स हैं डेट के, जरा देखो, देखिए 2 आइटम तो ये और तीसरा ये, इसे मैंने कॉपी करके यहाँ पे ले और पेस्ट कर दिया, ठीक है। देखते रहिए। अब ये आइटम्स को मैं लिंक कर रहा हूँ एक एक करके। वो जो टेक्स्ट लेके आता हूँ ना, तो उसे तो कॉपी करके लाया, लेकिन ये डेटा हम लिंक करेंगे। यहाँ तक करो, चलिए इसके बाद अब क्या करेंगे, देखिए ज़रा, मैं इन दोनों आइटम्स को नीचे रख लेता हूँ और करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट को थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ लिखता हूँ डिस्क्रिशनरी बोरोइंग
और पे डाउन। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको क्या किया, कलर कर दिया, क्योंकि ये वैल्यूज़ मैं लिखने वाला हूँ मैनुअली। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैनुअली जो चीज़ लिखते हैं उसको हम जनरली कलर कर देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं जाऊंगा कहाँ पे, एनुअल रिपोर्ट में, और चेक करूंगा कि कंपनी की मैच्योरिटीज़ क्या है। आइए देखिएगा, ये देखिए कंपनी की मैच्योरिटीज़ गिवन है यहाँ पे। कि क्या कह रहा है यहाँ पे कि 2016 में कंपनी को 298 का डेट रीपे करना है, एंड दिस इज करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। देखिए जरा, 298 है, 298 ही यहाँ पे। वो डेट जो 16 में पे होना है वो 15 की बैलेंस शीट में करंट पोर्शन करके आएगा। तो जो डेट 2017 में पे होना है उसे मैं 16 में लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, जो 18 में पे होना है उसे मैं 17 में करूंगा, और अकॉर्डिंगली 1050 18 में चला जाएगा क्योंकि 19 में पे होना है, और 248 को मैं, जो कि 2020 में पे होना है, इसको मैं 19 में लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद मेरा लॉन्ग टर्म डेट क्या बचेगा, देखिए जरा, इक्वल टू प्रीवियस ईयर ऑफ लॉन्ग टर्म डेट माइनस जो इस साल करंट पोर्शन हो गया, प्लस अगर मैंने कुछ और बोरिंग की तो। अगर मैं माइनस करूंगा तो वो अपने आप माइनस हो जाएगा, मुझे हमें माइनस में लिखना पड़ेगा, लिखा ना पे डाउन। अगर मैं और ज़्यादा पेमेंट करूंगा अदर देन द शेड्यूल्ड पेमेंट्स तो वो माइनस हो जाएंगे लॉन्ग टर्म डेट में, और अगर मुझे बोरोइंग करनी पड़ी तो मैं उसे प्लस कर दूंगा। ये देखिए, यहाँ तक करिए अभी। टाइप कर लो, यहाँ पे देख के कर लो, अगर आपको समझ में आ गया है तो यहाँ से एक करके कर लो, या फिर सीधा जो मैं एक्सेल में दिखा रहा हूँ उसे टाइप कर लो। हाँ जी, इसके बाद हम ये देखेंगे कि कैश अवेलेबल कितना है जो थर्ड कंपोनेंट है उसके लिए। ठीक है ना, तो अभी हमने क्या लिखा, कैश अवेलेबल फॉर नोट्स एंड लोन्स। तो क्या करेंगे, देखो ये तो हमारे पास अवेलेबल था 892, इसमें से 298 इस साल पे होगा ना, ये जो 649 है ये तो अगले साल पे होगा, तो 298 इस साल पे हुआ, प्लस ये वाली सेल अगर हमने कुछ और बोरोइंग या पेमेंट करी वो, उसके बाद मेरे पास ये बचा। अगर हम चाहें तो 594 को भी यूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए 400 रुपये पे करना हो तो -400 कर लेंगे, और अगर पैसे की कमी पड़ जाए तो हम बोरिंग कर सकते हैं, मान लीजिए 600 रुपये। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ईयर में तो मुझे ज़रूरत है नहीं, आगे के देखेंगे कैश फ्लो जैसे आएंगे उसके हिसाब से डिसीजन हो जाएगा हमारा। तो इसको मैंने कंट्रोल R किया। अभी आप देखोगे तो सेकेंड ईयर में, थर्ड में और सब में नेगेटिव आ रहा है, लेकिन ये नेगेटिव एक और रीजन की वजह से भी आ रहा है, क्योंकि मेरा जो ओपनिंग कैश है ना वो जुड़ा नहीं है अभी तक यहाँ पे। जैसे ही मॉडल कंप्लीट होगा ये जो जीरोज आ रही हैं ये अपडेट हो जाएंगी उन नंबर्स के साथ। ठीक है ना, तो ये जो कैश फ्लोज हैं वो मेरे बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे वो मॉडल कंप्लीट होने के बाद पता लगेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए जो आ रहा है उसे आने दो, F2 करके कैलकुलेशन बैठा। इसका मतलब क्या हो सकते हैं, नोट्स बैलेंस शीट में रहेंगे पेबल नहीं नहीं, अभी तक तो आया नहीं ना, ये तो कैश अवेलेबल है। अवेलेबल है।
भाई ऊपर के दो आइटम्स जो डेट के हैं उनको डील करने के बाद हमारे पास कुछ पैसा और बचेगा या क्या होगा वो देखना चाहते हैं। ये हमारे पास बच गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए जरा इधर, इक्वल टू पिछले साल का डेट माइनस जो मेरे पास कैश अवेलेबल है, राइट और रॉन्ग। लेकिन इससे क्या होगा, डेट की ओवर पेमेंट हो जाएंगी। हमारे पास डेट तो था 4, कैश था ज़्यादा, तो ये ज़्यादा पे होते हुए दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर एक फंक्शन लगा देंगे मैक्स 0 कोमा दिस माइनस दिस। तो अब अगर ये कैलकुलेशन नेगेटिव हुई तो मैक्स फंक्शन की वजह से आंसर 0 आएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 0, लेकिन अगले साल क्योंकि नेगेटिव है तो इतने की बोरिंग अपने आप हो जाएगी, यहाँ पर बोरिंग बढ़ती जाएंगी। जब यहाँ पर पैसा बच गया तो देखो रीपेमेंट कर रहा है। अब जैसे ही ऊपर मेरा कैश अपडेट होगा, ये तुरंत ये कैश अपडेट होएगा, उसके अकॉर्डिंगली मैं फॉर्मूले में बोरिंग या रीपेमेंट कर देंगे। ठीक है, डेट शेड्यूल बनाने का ये एक तरीका है। ठीक है, ट्राई करिए। रोहित जी कुछ? तो कैश अवेलेबल तो 594 प्लस में है ना हमारा? हाँ प्लस में है, लेकिन मैं फॉर्मूला क्या लगा रहा हूँ कि 4 माइनस 594 तो माइनस हो जाएगा। डेट तो माइनस हो नहीं सकता ना, 0 हो सकता है या प्लस रहेगा, माइनस तो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर पैसा ज़्यादा है तो पेमेंट केवल उतना हो जितना डेट रीपेमेंट हो सकता है, जितना मुझे 0 तक जरूरत होगी। लेकिन अगर नेगेटिव आ गया तो उतने कैश की हम बोरिंग करेंगे। नहीं, इस केस में 590 की पेमेंट होगी, क्योंकि 4 था वो 0 हो गया, मतलब 590 पे हो गया है। सॉरी 590 नहीं पे होगा, 4 पे होगा। 590 जो है वो कैश में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो मैं यहाँ पर करता हूँ 592 की पेमेंट कर देता हूँ ऊपर, तो यहाँ पर कितना बचेगा, केवल 2 बचेगा। 2 बचा ना, तो पेमेंट भी केवल 2 तक की हुई। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम -600 कर देता तो ये कैश नेगेटिव हो जाता, तो इतने पैसे की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो मतलब 4 + 6 10 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे बताइए? कोई नहीं, वो 0 डैश ही होता है, Ctrl+Shift+1 कर दो, ठीक हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब एक काम करो, बैलेंस शीट पे जाओ और यहाँ पर नोट्स एंड लोन्स पेबल इक्वल टू डेट शेड्यूल, ये है आपका नोट्स एंड लोन्स पेबल, एंटर, इक्वल टू डेट शेड्यूल, ये आपका है करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, और फिर यहाँ पर इक्वल टू डेट शेड्यूल, ये है आपका लॉन्ग टर्म डेट, कंट्रोल आर, इन दोनों को भी कंट्रोल आर, यहाँ तक कीजिए।
डाटा कॉपी हो जाए तो आगे दे देना रोहित जी। देखिए इधर, अब बैलेंस शीट में डेटा आने के बाद हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, चेंज इन डेट। तो इक्वल टू सम, सम किसका, ये काम कर सकते हो डेट शेड्यूल में ही यहाँ पे निकाल लो, आसानी से हो जाएगा काम। टोटल डेट के इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, टोटल डेट आ गया ना, इसी को ही पेस्ट कर दो, समझ गए। अब ये जो चेंज आएगा उसको कैश फ्लो में डाल देना कि इक्वल टू डेट शेड्यूल टोटल इस साल का माइनस टोटल डेट पिछले साल का, कंट्रोल आर, टोटल कर दिया इसका, कंट्रोल आर करो यहाँ तक। चलिए That one is not really.
कैश फ्लो स्टेटमेंट में चेंज आ गया आपका, बताइए। कैश फ्लो स्टेटमेंट में चेंज आ गया होगा ना। हाँ जी। ठीक है, अब क्या करो, इक्वल टू ओपनिंग प्लस इन्वेस्टिंग। एक मिनट भाई, रुक जाओ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ, भूल जाऊँगा एकदम। इक्वल टू ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग, ठीक है। कंट्रोल आर। ये कैसे होगा कि माइनस आ गया? हाँ आ सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग कैश बैलेंस में यहाँ से दिस प्लस मार्केट सिक्योरिटी, इन दोनों का टोटल यहाँ तक करो। हाँ जी, अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, देख लेता हूँ। नहीं आया देवेंद्र जी, आपका व्हाट्सएप नहीं आया मेरे पास, व्हाट्सएप नहीं आया मेरे पास। नाइन 9896999313 नहीं आया। डन। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट इन मार्केट सिक्योरिटीज, वो कितनी होगी, जो मेरा ओपनिंग, जो मेरा मिनिमम कैश बैलेंस है ना, इन्वेस्टमेंट इन मार्केट सिक्योरिटी और फिर क्लोजिंग कैश बैलेंस, ठीक है। मार्केट सिक्योरिटी में कितना पैसा रखोगे, जितना जितना मिनिमम से ऊपर होगा, जितना मिनिमम से ऊपर होगा उस उतना पैसा मार्केट सिक्योरिटी में रखेंगे। तो ये हमारा अगर क्लोजिंग बैलेंस है तो माइनस क्या मैं कर सकता हूँ, मिनिमम वाला अमाउंट, डेट में था ना यहाँ पे मेरे पास मिनिमम, तो ये मेरा क्लोजिंग में रहेगा और दिस माइनस दिस, ये मेरा एज कैश रहेगा। नहीं समझे ये तो वही हो गया ना क्या? जो आपने उसमें लिखा है। हाँ तो वही है जो मुझे बैलेंस शीट में डालना है ये, ठीक है। मैंने लिया क्या है, दिस माइनस दिस, मिनिमम कैश डायरेक्टली इतना तो मुझे रखना पड़ेगा, इतना तो मुझे रखना पड़ेगा बैलेंस शीट में। इससे ऊपर जितना ही पैसा होगा उसे मार्केट सिक्योरिटी में डाल दूंगा ताकि उससे कुछ रिटर्न आए हमारे को, बस ये कर दिया हमने। उसके बाद इसको कंट्रोल आर कर दिया, करो इतना, आपको समझ में आएगा। अभी देखो ये जीरोज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बैलेंस शीट में ये वाला अमाउंट गया नहीं है। जब तक पिछला क्लोजिंग ऐड नहीं होगा तब तक इस साल ओपनिंग कैसे आएगा। हमें से क्लोजिंग कैश बैलेंस डायरेक्टली मिनिमम कैश बैलेंस तो वही मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ कि मिनिमम कैश बैलेंस, लेकिन एक्चुअली मैं ये वर्ड नहीं लिख सकता कि मिनिमम कैश बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, नहीं ये ठीक है, टेक्निकली ठीक नहीं है वो चीज़। नहीं तो हमने अपने हिसाब से ये चीज़ बनाई ना कि जितना मिनिमम मुझे चाहिए मैं उतना ही बैलेंस शीट में रखूँगा, बाकी सारा उठा करके मार्केट सिक्योरिटी में डाल दूँगा। अगर मेरा मिनिमम कम बचा, पैसा ही कम होगा, तो मार्केट सिक्योरिटी को बेच करके मिनिमम को कंप्लीट करूँगा, तो उसमें से निकालूंगा पैसा।
और अगर मार्केट सिक्योरिटी भी सारी यूटिलाइज हो गई तब भी मेरा मिनिमम नहीं हुआ तो मैं बोरिंग करूँगा। तो ये मॉडल में सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। अब देखिए, एक सेकंड देख लो, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ 1 मिनट के अंदर, फिर मैं सबके डिटेल्स फिल करा दूंगा। कैश बैलेंस आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, दिस मार्केट सिक्योरिटी 594, दिस। एक बार चेक कर लेते हैं बैलेंस शीट मैच हो रही है नहीं हो रही है, कुछ गलती हुई तो मैं ढूंढने लग जाऊंगा। कंट्रोल आर, ये टोटल तो फॉर्मूले लगे ही हुए हैं ना, इनको बार बार लगाने की जरूरत ही नहीं होती है। वाह, सो दिस वे द बैलेंस शीट हैज मैच्ड परफेक्टली। ठीक है ना। अब आप क्या करो, अपना अपना डेटा जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में पुट करो और चेक करो कि आपकी बैलेंस शीट मैच होती है कि नहीं होती है। अब इसमें एक आइटम बच गया है, वो क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है ना। इंटरेस्ट एक्सपेंस से सर्कुलर आएगा, तो वो हम आज नहीं करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस को मैं आपको DCF में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है ना। फिलहाल आज तक के लिए इतना ही है इस स्टडी के लिए, बाकी फिर हम करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।